Hi guys, Radhe Radhe, welcome back to episode 8 of Learn Geeta with me. I'm so happy that you are right here sitting watching episode 8 of Learn Geeta with me. That means we are at shloka number 8. And also, if you are new here, then please जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब बटन को हिट करो क्योंकि you are not learning Geeta from me. You are learning Geeta with me. आज के श्लोक पे चर्चा करने से पहले लेट्स गो एंड डू अ क्विक रिकैप ऑफ श्लोका नंबर 7। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था कि जैसे कपिल शर्मा के जोक्स में ऐसे नहीं होता था टॉक टू माय हैंड, तो वैसे ही दुर्योधन भी ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत वॉरियर्स और हम भी किसी से कम नहीं है, मतलब दैट्स द वाइब, दैट्स द tone. And in this shlok, he goes one step further. He starts name dropping all the powerful warriors from his army. और देखो करने की जरूरत भी थी क्योंकि अपनी आर्मी का मोरल भी तो हाई करना है, मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं। तो चले फिर आज के श्लोक में। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. So Duryodhan goes like, there are personalities like yourself, he says to Dronacharya, Bhishma, Karna, Kripacharya, Ashwathama, Vikarna and the son of Somadatta, Bhurishrava. So he's actually named 7 people here. उन्होंने अपनी आर्मी में से इन 7 को ही क्यों चुना? It's got lots of mirchi masala, these 7 names. So are you ready? So इस लिस्ट पर सबसे पहला नाम है द्रोणाचार्य का, and Duryodhan is being politically correct in all the ways possible by taking the name of his teacher first. क्योंकि according to the Varnashrama etiquette, जो ब्राह्मण होते हैं they are to be respected first क्योंकि they were considered the head of the society, and the Kshatriyas were considered the hands of the society. The Vaishyas, the businessmen, Govraksha traders were considered the stomach of the society, and the Shudras were considered as the legs of the society. तो सबसे पहले टीचर का नाम लेके दुर्योधन ने किसी को भी ऑफेंड नहीं करा है, सब खुश हैं. एंड देन वी हैव भीष्म पितामह. द नेम सेज इट ऑल, लेजेंड. So basically he was the eldest son of King Shantanu and Ganga, and he was originally named Devvrat. But you know how he got the name Bhishma? He gave up everything. He gave up the throne, he gave up marriage, he took a vow of lifelong celibacy, all for what? For the sake of his father's happiness. Can you imagine the strength of the character here? But now Bhishma is only fighting for a vow that he once took to serve the throne of Hastinapur. He could have broken it in this situation. Upholding dharma is always the higher duty. कभी कभी हम अपने छोटे धर्म को तो एकदम ऐसे पकड़ के रखते हैं लेकिन अपने बड़े धर्म को भूल जाते हैं. हमको हमेशा याद रखना है फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ भीष्म पितामह दैट धर्म इज डायनामिक, इट कीप्स चेंजिंग, इट्स नेवर द सेम. तब जो हुआ हुआ, अब क्या करना चाहिए? नेक्स्ट कम्स सूर्यपुत्र कर्ण. क्लियरली ही इज द सन ऑफ सूर्यदेव and he is the son of Kunti as well. तो कुंती के सिर्फ 5 बेटे नहीं थे, कुंती के 6 बेटे थे and सबसे पहला बेटा था कर्ण. The thing was Kunti had him before marriage and she had to let him go. तो उन्होंने उनको एक रिवर में बास्केट में डाला and बहा दिया. But destiny had other plans. Karn was found by a charioteer अधिरथ, raised by him and his wife Radha, and that's why कर्ण को काफी बार हम राधे कहते हैं. So Karna, he was equal to Arjun in skill. That's big, right? लेकिन his competitiveness, his need to prove and his friendship with Duryodhan, they all make him fight on the wrong side. मुझे आपको कर्ण और अर्जुन में अगर एक छोटा सा डिफरेंशिएशन बताना होगा तो आई वुड से कर्ण का गोल था टू बिकम सर्वश्रेष्ठ, like he wanted to be best than everybody else. Like he was always in this competitive spirit, especially with Arjun. लेकिन अर्जुन का गोल हमेशा यही था to become सर्व उत्तम. Like he just wanted to become better than himself. His only competition is himself, his own journey, his own improvement. He was not working on कि अच्छा they are doing this or I want to be better than him. His goal was I want to be better. There was no comparison, no competitiveness. And if there was any, then it was with himself.
फिर आते हैं कृपाचार्य. कृपाचार्य was raised by King Shantanu. He was the कुल गुरु of हस्तिनापुर और he was an expert in archery. यहाँ तक कि before the arrival of द्रोणाचार्य ये ही प्रिंसेस को मिलिट्री साइंस सिखाते थे. एंड फन फैक्ट बताऊं क्या, हिज सिस्टर कृपी वॉज मैरिड टू द्रोणाचार्य. एंड सो यहाँ पर दुर्योधन अगर कृपाचार्य का नाम ले रहे हैं इस श्लोक में, तो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कृपाचार्य's ओन क्वालिफिकेशन, इट्स ऑल्सो द फैमिली लिंक. ही इज ट्राइंग टू फ्लैटर द्रोणाचार्य कि देखो आपकी फैमिली का भी मैंने नाम ले लिया है. नेक्स्ट वी हैव अश्वत्थामा. इन्होंने इतनी ज़्यादा डार्क चीज़ें करी हुई है ना, एंड मुझे तो पर्सनली समझ ही नहीं आया कि क्यों किया उन्होंने. लाइक इतना गुस्सा था कि अंधभक्ति थी कि था क्या लिटरली. जब महाभारत वॉर कंप्लीट हो गया था उसके बाद अश्वत्थामा ने क्या किया था विद द्रौपदी के 5 बेटे. So basically he was Dronacharya's son, and he was the only reason Dronacharya was fighting in this war. Dronacharya had no personal interest in the war, but he was there just because उनका बेटा अश्वत्थामा लड़ रहा था. So because of his moh, his attachment, he was there to protect his son. And then comes Vikand. Vikand was one of Duryodhan's brother, लेकिन he was different. I mean, he was the only brother I can say had a consciousness. क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, then he was the only person who said कि ये गलत हो रहा है. तो दुर्योधन यहाँ विकर्ण का नाम क्यों ले रहा है काफी ऑब्वियस है, बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिम ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ द पांडवास, क्योंकि थोड़ा धर्म उनके अंदर कहीं था. तो यू नो लाइक जस्ट मेकिंग श्योर कि मेरे पास ही लड़ो तुम, दुर्योधन ने विकर्ण का नाम ले लिया इस श्लोक में. एंड लास्ट इन दिस श्लोक was Bhurishrava, the son of Somadatta. Basically, he was the grandson of Shantanu Maharaj's elder brother, and again, very generous, very powerful, but wasted on the wrong side. सोचने वाली बात तो ये है कि ये सारे वॉरियर्स इतने पावरफुल थे, इतने स्ट्रांग थे, इतने इंटेलिजेंट थे, लेजेंड्स थे सभी, राइट? इतने स्किल्ड थे, इतने रिस्पेक्टेड थे, लेकिन ये सब कहाँ खड़े थे? रॉन्ग साइड. क्यों फाइट कर रहे थे ये रॉन्ग कॉज के लिए? क्योंकि ये सब अपने कोई पर्सनल वाउस, कोई पर्सनल अटैचमेंट्स, लॉयल्टीज, फ्रेंडशिप्स, ऑब्लिगेशंस कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, और इनकी आंखों में ये सही कर रहे थे, लेकिन कृष्णा की आंखों में ये सब अधर्म कर रहे थे. लेसन फॉर अस गाइस, कभी कभी हम भी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में या अपने ईगो या किसी को ग्रैटिट्यूड शो करने के चक्कर में गलत साइड चूज कर लेते हैं. उस समय याद रखो और अपने आप को क्वेश्चन करो कि इज दिस धर्मा और नॉट. ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू द वेरी एंड. अब आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लीव योर कॉमेंट्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. यू जस्ट हैव टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि एपिसोड 9 इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है. सो स्टे ट्यून, एंड जब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप रिफ्लेक्टिंग एंड ऑलवेज स्टैंड ऑन द पाथ ऑफ धर्मा. बाय.